آج بھی وہ دن یاد ہیں جب میں اپنی شادی کے بعد پہلی بار انڈیا واپس آیا تھا۔ گھر کا ہر فرد ایئرپورٹ پر موجود تھا، جس میں میری 2 سال کی بیٹی آیت بھی تھی۔ میری آنکھیں عالیہ کو ڈھونڈنے لگی تھی، لیکن اس کو وہاں نہ پا کر میں تھوڑا بے چین سا ہو گیا۔ خیر، گھر والوں سے مل کر آیت کو گود میں لیا تو وہ زور زور سے رونے لگی۔ ارحم، اسے مجھے دے دو۔ آپا کی آواز آئی تو فوراً ہی میں نے عالیہ کا پوچھ لیا، اماں عالیہ کیوں نہیں آئی مجھے لینے، اور پھر اتنی چھوٹی سی بچی کو بھی بھیج دیا؟ ارحم، تم پریشان مت ہو، وہ گھر پر تمہارے لیے کھانا بنا رہی ہے۔ وہ کون سا روز روز کام کرتی ہے؟ آج سب لوگ تمہیں ملنے آئے ہیں تو اس لیے کھانا بنا رہی ہے۔ آپا کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ ایئرپورٹ سے گھر تک کوئی 1 گھنٹے کا سفر تھا۔ میں پورا راستہ آیت سے کھیلتا رہا۔ اب وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ سب کچھ اچھا لگ رہا تھا، لیکن دل میں افسوس تھا، کاش عالیہ بھی آ جاتی۔ 3 سال ہو چکے ہیں اسے دیکھے، کیا کھانا ضروری تھا؟ ملنا نہیں؟ میرے دل میں عجیب عجیب سے سوال اٹھ رہے تھے۔ خیر، گھر کے دروازے پر پہنچے تو عالیہ پہلے ہی گاڑی کی آواز سن کر وہاں پہنچ چکی تھی۔ دور سے دیکھا تو دل چاہ جا کر ملوں، لیکن نہیں۔ وہ دور سے سلام کیا اور وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے بعد پانی لینے چلی گئی۔ پورا دن مہمانوں کا آنا جانا رہا۔ گھر والے بہت خوش تھے، میرے دوست ملنے آ رہے تھے۔ عالیہ کچن سے نکلی ہی نہیں، کبھی کسی کو چائے پیش کر رہی ہے تو کبھی کھانا۔ مانو لگ رہا تھا جیسے میری عالیہ تو کہیں کھو گئی ہے۔ شام ہوئی تو کچھ رش کم ہوا، سب کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ سوچا کہ کچھ مدد کروں، صبح سے بس کام میں لگی ہے۔ ابھی اٹھا ہی تھا کہ اماں نے بلا لیا، ارحم میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ، عالیہ سے کچھ بات کرنی ہے، آ رہا ہوں۔ اسے چھوڑو، کام ختم کر کے خود ہی آ جائے گی۔ ویسے کون سا کام کرتی ہے، آج ہی کرنے لگی ہے تو کرنے دو۔ شاید یہ دوسری بار تھی جو عالیہ کے خلاف میرے دل میں لگی تھی۔ صبح جب آپا نے کام نہ کرنے کا سنایا اور اب اماں کی بات پر میں چپ کر کے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ شاید ماں ٹھیک کہہ رہی ہوگی، آخر کو وہ میری ماں ہے، غلطی کیسے کر سکتی ہیں۔ رات کو جب سب سونے چلے گئے تب عالیہ سے بات کرنے کا موقع ملا۔ عالیہ، تم اتنی چپ کیوں ہو گئی ہو؟ تم تو بولا کرتی تھی، یاد ہے جب تم آفس میں اتنا زیادہ بولا کرتی تھی کہ ہم تمہیں چپ کراتے رہتے تھے۔ کبھی آفس میں باس سے لڑائی، کبھی میڈم افسانہ سے۔ عالیہ اور میں ایک ہی آفس میں کام کیا کرتے تھے۔ عالیہ مجھے پہلے دن سے ہی پسند آ گئی تھی۔ جب وہ پہلے دن آفس میں آئی تھی تو معصوم سی اور بولنے میں طوطا سی تھی۔ ہم نے 3 سال ساتھ جاب کی، پھر مجھے باہر جانے کا موقع ملا تو جاب چھوڑ دی، لیکن عالیہ کو کبھی نہیں بولا، اس کو اپنانا چاہتا تھا۔ تبھی ماں کو راضی کیا، جو کہ تھا ہی مشکل کام تھا۔ خیر، آخر وہ دن آ ہی گیا جب ہم ایک ہو گئے تھے۔ بس 1 ماہ کے لیے ہی میں اپنی شادی پر آ سکا۔ شادی کے بعد ادھر ادھر دعوت اور گھومنا پھرنا لگا رہا۔ پورا مہینہ گزر گیا، پتہ ہی نہ چلا۔ ارحم، میں بس عالیہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ آیت نے رونا شروع کر دیا۔ آیت کو چپ کرانے اور سلانا شروع کر دیا۔ آیت کو چپ کرانے اور سلانے میں لگ گئی۔ میری آنکھ کب لگی پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح آیت کے رونے کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ آیت کی مسلسل آواز سے آخر میں اٹھ ہی گیا۔ عالیہ کہاں ہو؟ عالیہ، عالیہ۔ میں آیت کو لے کر باہر آیا تو پھر سے عالیہ کو کچن میں پایا۔ سب لوگ کھانے کی میز پر تھے سوائے عالیہ کے۔ اماں نے مجھے دیکھا تو بلا لیا، آ جاؤ، ناشتہ تیار ہے، دیکھو تمہارے سب بہن بھائی موجود ہیں۔ اماں، عالیہ کہاں ہے؟ آیت کو بھوک لگی ہے، لاؤ اسے مجھے دے دو، تم فریش ہو جاؤ، اسے میں دیکھتی ہوں۔ آج پھر عالیہ کچن میں اکیلی، اور پورا خاندان جس میں کم سے کم 20 لوگ تو ہوں گے کھانے میں مصروف تھے۔ اماں تو کہہ رہی تھی کہ عالیہ کوئی کام نہیں کرتی۔
बस कल ही किया था, फिर क्या था, आलिया अपना और मेरा खाना बाहर ले आओ। शायद मेरी बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी थी, पर कुछ ऐसा भी था जो मुझे भी अच्छा नहीं लगा था। सुबह से दोपहर और दोपहर शाम आलिया का बस एक ही काम था, वो हर किसी की ख्वाहिश पूरी करने में लगी रहती। मैं समझ चुका था कि आलिया इतनी चुप क्यों हो गई है। मेरे घर में आ जाने के बाद आलिया में फिर से कुछ तब्दीलियां आना शुरू हुई। शायद मेरे जाने के बाद सब इस पर हावी हो गए थे, तभी तो थोड़ा सहम चुकी थी। मगर वक्त गुजरता रहा। अब वो काम छोड़ भी दिया करती थी, मुझसे कह देती और मैं खुशी से इसकी उठकर मदद कर देता। आज अम्मा की आवाज़ आई कि आलिया नाश्ता बना दो, लुबना आई है। लुबना मेरी आपा का नाम था, जिनकी शादी हमारे घर के करीब ही चचा के घर में हुई थी। आपा तकरीबन रोज ही हमारे घर आ जाया करती थी। आलिया की कमर में शदीद दर्द था। मेरे मना करने के बावजूद वो किचन में गई और नाश्ता तैयार करने लगी, क्योंकि आयत भी सो रही थी। इसलिए मैं आपा से बातें करने में मसरूफ हो गया। आपा हम सब बहन भाइयों से बहुत प्यार करती थी और हम सब इनको बहुत पसंद करते थे। अरहम प्लीज दस्तरखान लगवा ले मेरे साथ। मैं उठ खड़ा हुआ और आलिया की मदद करने लगा। ये बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी। जब सब नाश्ते से फारिग हो गए और आलिया भी आयत को लेकर कमरे में चली गई, तब आपा और मैं एक दूसरे से बातें करने में मसरूफ थे। अरहम, तुम जानते हो मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। कभी ऐसा नहीं चाहती कि तुम लोग खुश ना रहो, लेकिन मेरी कुछ नसीहतों पर अमल करोगे तो सुखी रहोगे। आगे तुम्हारी मर्जी। मैं तुम पर जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। जी आप बोले आपा। आपको मालूम है हम सब बहन भाई आपकी और अम्मा की बात को जरूर अहमियत देते हैं। अरहम, तुम अपनी बीवी की मदद जरूर किया करो, लेकिन एक हद तक, जब तक तुम्हें कोई न देखे। अच्छा तो नहीं लगता तुम बर्तन उठा रहे हो और ख्वातीन वाले काम कर रहे हो। जो आदत तुम आज डालोगे इसे कल वही रहेगी। जो इसके काम है इसको करने दिया करो, आखिर को आहिस्ता आहिस्ता कर ही लेगी। लेकिन अगर आदत बन गई तो फिर तुम्हें हमेशा ही इसकी मदद करना होगी। सोच लो। आपा की बात मेरे दिल को लगी। दिन गुजरते रहे, आलिया मुसलसल काम में लगी रही। कभी मेरा दिल चाहता तो आयत को दूध बना देता, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अम्मा नहीं चाहती थी कि मैं वापस दूसरे मुल्क जाऊं, क्योंकि मैं मेकअप कंपनी में जॉब करता था। तब इसी हवाले से घर बैठे कंप्यूटर पर बहुत अच्छा कमा लेता। वक्त गुजरता गया, सब कुछ नॉर्मल था। मैंने कभी गौर नहीं किया कि आलिया क्या करती है। जब मेरे 3 बच्चे हुए तो गुजारा थोड़ा मुश्किल हो गया। मेरी दोनों बेटियां तो स्कूल जाया करती थी, लेकिन बेटा अभी छोटा था। तभी मैंने और आलिया ने फैसला किया कि हम बच्चों को बेहतर तालीम देने के लिए दूसरे शहर शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ आलिया नौकरी कर लेगी और मैं घर बैठे अपने चीज़ों को सेल कर लूँगा। आपा से मशवरा किया तो उन्होंने हामी भरी कि ठीक है, बस अम्मा को भूल मत जाना। मेरी तो ख्वाहिश थी कि अम्मा को साथ ले जाऊं, लेकिन अम्मा अपने बच्चों को छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी। वह बड़े भाई के साथ रहने लगी। अब जिंदगी बेहद मसरूफ थी। मैं पूरा दिन शाम तक ऑर्डर लेता और इनको दूसरी जगह पर भेजता। आलिया जॉब में मसरूफ थी और बच्चे पढ़ाई में, और मेरा बेटा घर पर होता लेकिन बेहद मसरूफ। एक दिन आलिया जॉब से आई तो शायद कुछ ज्यादा थक गई थी। आते ही सो गई और हम सब भूखे रह गए। आलिया थोड़ा बीमार रहने लगी थी। अब जब वह जॉब से वापस आती तो पहले की तरह चुस्त और तंदुरुस्त महसूस न करती। अब दोपहर के खाने के साथ साथ हम रात का खाना भी होटल से मंगवा लेते। आलिया रोज कहती है, अरहम मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं, और मैं रोज काम की वजह से ना जा पाता। सालों साल गुजरते रहे, ना मुझे टाइम मिला, ना आलिया की बीमारी ठीक हुई। नहीं मालूम इसे क्या हुआ था। फिर एक दिन ऐसा आया कि जब मैं खूब बीमार हुआ
पेट के दर्द ने जैसे मेरी जान निकाल दी। सिवाय आलिया के मेरे पास कोई नहीं था। आखिर मेरे घर वाले भी तो हैं, उन्होंने मेरा ख्याल क्यों नहीं रखा। एक दफ़ा फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं आलिया के साथ ज़्यादती कर जाता हूँ, लेकिन ये एहसास शायद कुछ दिनों का होता। फिर से वही ज़िंदगी जिसमें मेरी ख्वाहिश होती कि आलिया जॉब से वापस आकर खाना बनाए और पूरे घर को संभाल ले, और जब बात मेरी मदद की आती तो मैं अपनी थकन को आगे ले आता। आपा की वह बात कि बीवी की बेजा मदद ना करना वरना सारी ज़िंदगी करना पड़ेगी, मेरे दिमाग में मौजूद थी। आलिया और मैं लड़ना शुरू कर देते। कभी टाइम ना देने पर मुझसे लड़ती, और कभी मैं खाना न बनाने पर, और कभी तेरे घर वाले और कभी मेरे घर वाले। बस यही तू मैं करके वक्त गुजरने लगा। कभी मान जाते, कभी लड़ने लगते। आज मैं बहुत उदास हूँ। आलिया हॉस्पिटल में है, इसको ड्रिप लगी है, और मैं खुद को काफ़ी तन्हा महसूस कर रहा हूँ। मैं और मेरे बच्चे बस, और कोई नहीं। मेरे घर वाले आलिया से तबीयत पूछकर जा चुके हैं, सिवाय आलिया की अम्मी के, और कोई नहीं जो इस वक्त इसके लिए बेचैन हो। मुझे आज वह दिन याद आते हैं कि हम क्यों लड़ते थे, अपना वक्त ज़ाया करते थे। क्यों मेरी आपा ने मुझे ये नहीं कहा कि अरम अपनी बीवी की मदद किया करो, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद पसंद है। क्यों मैं आलिया को हर दफ़ा गलत कह देता था, और बस यही लगता था कि ये बस काम से भागने के चक्कर में रहती है। क्यों हर दफ़ा मैं अपने घर वालों की बात को सही समझता था। मैंने और मेरे घर वालों ने आलिया को बदल डाला था। वह जो आलिया ज़िंदगी जिया करती थी, मैंने उसकी खुशियाँ अपने से ख़त्म कर डाली थी। मैं उसका ख्याल तो बहुत रखता, अच्छा लगता, लेकिन सिर्फ पैसों की हद तक। अब तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तुम मेरी ज़िंदगी की साथी हो, मुझे तुम्हारे साथ की आदत है, बस ठीक हो जाओ। मुझे आज समझ आया कि वह तो खाना भी नहीं बनाती थी, फिर भी क्यों थक जाया करती थी। सिर्फ खाना बनाना घर के कामों में शामिल नहीं होता, और बहुत कुछ होता है। आजकल मैं भी खाना बाहर से मंगवाता हूँ और फिर भी थक जाता हूँ। पूरा दिन मैं 5 मिनट का आराम नहीं कर सकता। आलिया तुम सच कहती थी कि अरहम मर्द ही क्यों थकता है, आखिर औरत क्यों नहीं थकती। इसको इजाज़त क्यों नहीं होती कि वह अपनी थकान बयान कर सके। मैं अपने सब भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, जो गलती मैंने की है आप लोग कभी मत करना। अपनी बीवियों के लिए टाइम निकालो, इनके भी नखरे उठाओ, क्योंकि वह इन सबको पसंद करती हैं। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बीवियां जवान और हसीन रहें तो इसकी तारीफ किया करो। जो मर्द हजरात ज़्यादा गुस्सा करते हैं, इनकी बीवियां जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। और एक बात बहुत अहम, हमारे घर वाले जितना हमसे प्यार करते हैं, इतना हमारी बीवी से नहीं कर सकते। लिहाजा बीवी आपकी है, ना कि मोहल्ले वालों की, और इसने आपके घर को संभालना होता है। लिहाजा इसको मजबूत बनाने के लिए आपके प्यार और मदद की ज़रूरत पड़ती है। जो काम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, वह गलत कैसे हो सकता है। अपनी बीवियों की उनके इस काम में मदद किया करो, ताकि अगर वह थक भी जाए तो आपका साथ इनका सहारा बन जाए और आपका घर जन्नत की मानिंद हो। आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं, और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।